हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। वेरी गुड। तो आज एक्चुअली यहाँ भी लाइट ही नहीं है, क्या करूँ मैं, अंधेरे में कर रहा हूँ। ओके, तो एक मिनट, किसी को एडमिट तो नहीं करना था। हाँ ठीक है, तो चलो मैं सीधे शुरू करता हूँ कि हमने लास्ट टाइम करना था गाउसेस फॉर्मूली। They were actually equation, the second order partial derivatives in terms of the basis n r sub u and r sub v. Basically what we want to do, we have got three equations because I can write any vector in terms of these three. Then its resolved part in the direction of unit normal would be simply L. It should be L times n. Then I had small l times r sub u plus, of course, lambda times r sub v. Similarly, you have RUV is equal to m times n plus small m times r sub u plus mu times r sub v. And of course, RVV was this second order fundamental magnitude n times n plus, of course, small n times r sub u plus nu times r sub v. Okay, what we want to show that these numbers L, M, N and lambda, mu, nu, these six numbers जो यहाँ पे है, can be written in terms of EFG and their partial derivatives. So we can do that. Okay, that's the idea. That's what we want to prove. Now, once we do that, then we call them Gauss's formulae. So Gauss's formulae are, when we can write them, where these symbols LMN and lambda mu nu, which we call Christoffel symbols, that we can write them in terms of first and second order derivatives. Now, for that we have to do a lot of equations. Let's call them these equations first, second, and third, or rather 1, 2, 3. Right? Let's call them 1, 2, 3. Okay. Now we have to determine these numbers. L, M, N, and lambda, mu, nu are to be determined. Because these numbers are already determined. We know what are these. So L is basically, as you already know, RUU dot N. M is equal to RUV dot N, UV VU dot N, and of course this N is equal to RVV dot N. So these numbers we know, these numbers we have to find. These are unknowns, what we call Christoffel symbols. Now for these, what we do, we partially differentiate E with respect to U. That means we have, where we want to find del by del U, E is basically RU dot RU. And once I do that, this would be basically RUU dotted with RU plus RU dotted with RUU. And since dot product is commutative, it is just twice R sub U dot RUU. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, sir. Okay. Similarly, I can evaluate FU. FU का मतलब है del by del U RU dot RV. Now that would be this RUU dot RV plus RU dot RUV, yeah, VU, because mixed partial derivatives are equal in this case. Similarly, G sub U
would be del by del u of rv dot rv. So you use the product rule. So that will be just twice ruv dot rv. जिस तरह से यहाँ था बिल्कुल वैसे rvv तो नहीं आएगा. हाँ नहीं, with respect to u कर रहा हूँ ना मैं. Sorry, sir. Okay. Similarly, I can do the other ones, right? अब मैं थोड़ा सा जल्दी में करूंगा वो. EV, E sub V होगा twice R sub U V dot RU, मतलब ये इससे अलग है. Similarly, FV, which you can do yourself, would be R, of course it is UV, so it would be VU dot RU plus RU dot RVV. And of course, then I have last one, G sub V. G sub V is del by del V of RV dot RV, which would be twice RV dot RVV. हमें इसमें काफी ये करना है काम, because इस सारा जो ये 6 equations है, इनको हम कहेंगे as a set 4, equation set 4, right? इनको मैनिपुलेट करके अगर मैं दूसरा पेज ले लूं तो from 4 we get from the system 4 we get, what do we get? We will get पहली वाली से तो easily RU dot RUU is 1 by 2 E sub U, right? R sub V dot RUU दूसरी इक्वेशन से मुझे मिलेगा. This is actually let me write it. It is F sub U minus 1 by 2 yes E sub V. मतलब अगर मैं पीछे जाऊं दूसरी इक्वेशन से उससे ये मिल जाएगा. बट यू कैन, अगर तुम घर पे भी तो कर सकते हो इसको. सिमिलरली R sub U इन सब इक्वेशंस को मैनिपुलेट करने के बाद, मतलब थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, RUV जो होगा वो होगा 1 by 2 E sub V, and then I have of course RV dot RUV बराबर होगा 1 by 2 G sub U, and let me write it RV dot RVV, उनको मैनिपुलेट थोड़ा किया हमने, बराबर होगा 1 by 2 E sub G sub V, and then the last one मुझे मिलेगी RU dot RVV is equal to FV minus 1 by 2 GU. Let's call this set of equations, इसको हमें system 5. ये system 5 है. Now what we do, okay, differentiating partially, no, पहले मैं इसको multiply करता हूँ. नहीं, okay, taking dot product of each side of 1 by R sub U and R sub V respectively. मतलब वन इक्वेशन कौन सी थी मेरी? वन इक्वेशन ये है मेरी, RUU is equal to LN plus lambda, नहीं, it was small l, R sub U plus lambda times R sub V. इन दोनों को मैंने, पहले तो मैंने इसको RU के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर इसी इक्वेशन का मैंने RV के साथ निकाला दोनों साइड्स पे, राइट? तो अगर मैं वो करूंगा तो मुझे मिलेगा RU डॉटेड विद RUU, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखो RU डॉट N तो 0 है बिकॉज N इज परपेंडिकुलर टू RU, तो इसको छोड़ते हैं तो बचेगा एक्चुअली L RU डॉट RU प्लस लेमडा RU डॉट RV, और दूसरी से मुझे मिलेगा, अगर मैं RV के साथ करूंगा तो इट विल बी RV डॉटेड विद RUU is equal to, फिर RV का N के साथ 0 है, so it will be L dot RU dot RV plus
lambda times RV dot RV. And you know that this can be written as L times E, because RU dot RU is E, plus lambda times F, and this would be L times F plus lambda times G. है ना? So, but this is equal to, अगर हम equation ये system 5 देखें, RU dot RUU is twice EU, so we get 1 by 2 E sub U is equal to this thing using this fifth system of equation, and RV dot RU इसके बराबर है. So यहाँ मुझे left hand side में मिलेगा FU minus 1 by 2 EV. So I get this, मतलब using the system 5. चाहे तो तुम यहाँ लिख लो using the system 5. Using the system 5, I can substitute the values of RU dot RU and RV dot RU. तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ एक ही साइड पे शिफ्ट करने के पहले तो थ्रू आउट ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई विल गेट ट्वाइस EL प्लस ट्वाइस लैम्डा F माइनस E सब U इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मुझे मिलेगी ट्वाइस FL plus twice lambda G, then I would have minus twice F sub U minus of course क्या था वहां पे E sub V. This is equal to, हमें ये दो equations मिले from which we can solve for L and lambda, right? Cross multiplication method से हम इन दोनों linear equations को कर सकते हैं. We can solve them for L and lambda. तो अगर मैं इसका नाम कुछ दे दूं system 6, नहीं ऐसे ही रखते हैं. Solving by cross multiplication, I would need another page. Solving these by cross multiplication, जो कि तुमने किया होगा 6th 7th में. You can do that. दो linear equation जैसे हम करते हैं ना, ax plus by plus c is equal to 0. Then you can write, चलो 1 1 लिख देता हूँ मैं, है ना. Then you have a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तुम इसको ऐसे सॉल्व करते हो ना, x divided by b1 c2 minus c1 b2 is equal to y divided by, है ना, is equal to 1 divided by whatever. वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे. ये जो पुरानी सेटअप, ये जो दो इक्वेशंस हैं. अब चूंकि मेरा पेज थोड़ा, मुझे पेज चेंज करना है इस पे, तो let me write down them. I would basically get L in divided by minus twice F whole multiplied by twice FU minus EV minus, नहीं rather plus आएगा, plus twice G E sub U, थोड़ा मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा complicated सी calculation है, is equal to lambda divided by minus twice E sub U F plus twice E into twice F sub U minus EV. This whole thing is equal to, अगर मैं यहाँ से रबर ले लूँ थोड़ी देर के लिए, okay, so ये बराबर है 1 divided by 4 into EG minus F square, जिसको मैं लिख सकता हूँ of course H square, है ना. दो थ्रूआउट कॉमन है, तो इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 2 से मैं थ्रूआउट डिवाइड कर सकता हूँ, तो बचेगा हमारा basically, let me write first G E sub U minus F times minus F into FU plus F into EV, of course whole divided by 4 times 2 खत्म हो गया तो twice H square, because EG minus F square is H square, and lambda is equal to let me twice E FU minus E EV, थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, F into E sub U, तुम वैसे खुद भी इसको चेक कर सकते हो, डिवाइडेड बाय ट्वाइस H स्क्वायर. तो ये हमें मिल गया L and lambda in terms of first order fundamental form, यानी EFG and their partial derivatives.
Similarly, अगर मैं लेता second equation को, similarly on multiplying second by RU and RV scalarly and using system 5, अगर मैं इसमें second equation लूंगा तो I would get 1 by 2 E sub V is equal to small m times E plus mu times F, and 1 by 2 G sub U is equal to small m times F plus mu G. और अगर मैं इन दो को solve करूंगा, I would get the values for m and nu. तो मेरा m मिलेगा, जब मैं इसको solve करूंगा पिछले की तरह, तो मुझे m मिलेगा. Okay, solving for m and u, we will get m is equal to 1 by twice h square into E into G into EV minus F into GU, and of course mu is equal to 1 by twice h square into E G sub U minus F into E sub V. Again, mu and mu जो है, m and mu है, वो भी in terms of the first order fundamental magnitudes and their partial derivatives. So similarly, अगर मैं तीसरी equation लूँ और यही सब करूँ, तो मुझे मिलेगा n and nu. n होगा बराबर 1 by twice h square into twice GFV minus GG sub U minus F into GV, and of course nu will be 1 by twice h square into EGV minus twice FFV plus FG sub U. Again, मेरे कहने का मतलब ये 6 के 6 जो ये Christoffel symbols हैं, they can be written in as a combination, as some sort of combination of what you call क्या बोलते हैं, first order fundamental magnitudes and their partial derivatives with respect to u and v. अगर रुकैया आई है तो, या इरफान अगर है तो, ये जो है ना, इसका जरा फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट. प्रेजेंट कौन कौन है? ओके, सुन रहे हो ना इरफान, रुकैया? यस सर. जी तो सर. इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना अटेंडेंस का. जी So सर, मैं it is done. So we now know what do we know? We know that RUU जो है और RUV जो है, इसके जो numbers हमने लिए थे RVV, you can write them as, एक तो आएगा L times N plus जो भी यहाँ constant है RU है ना, plus यहाँ पे कुछ है थोड़ा सा complicated सा, और इसीलिए हम directly नहीं लिखते. इसी तरह से होगा M times N plus यहाँ मैं dash रख रहा हूँ RU plus something into RV, और ये जो ये dots हैं ये हमारे Christoffel symbols हैं, and N times N plus again something into RU plus something into RV, और ये जो somethings हैं, ये तीन जो कुछ नहीं लिखा है, they are these expressions, ये लंबे चौड़े है ना, और इससे पहले भी दो थे, N nu LMN and lambda mu nu. So that was the first task in getting to the theorem egregium. इसमें एक corollary, अगर suppose parametric curves are orthogonal, तो ये formulas थोड़े से simple हो जाएंगे, जो कि हमें पता है रेगुलर हम ऐसा कर सकते हैं, हम reparameterize कर सकते हैं, so that मतलब reparameterize कर सकते हैं एक रेगुलर सरफेस को, so that RU dot RV जो है which is denoted by F, अगर ये 0 के बराबर ले सकते हैं by a reparameterization. तो वही है कि if the corollary यही है, if the parametric curves are orthogonal, तो होगा ये, इसमें से बहुत सारे नंबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि f हो जाएगा 0 और h स्क्वायर हो जाएगा e into g, because it is eg minus f square. और जब मैं वो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो LMN थोड़े सिंप्लीफाई, काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे. L हो जाएगा 1 by 2 simply E sub U by E, और जो M हो जाएगा वो होगा E sub V whole divided by twice E. N हो जाएगा, and we can always do that by a proper reparameterization. And in theory, of course, it's not that simple.
but in principle mathematics that is sufficient for us. EV divided by twice G और mu होगा GU divided by twice G और हमारा न्यू जो होगा मतलब काफी सिंप्लीफाई होगा. इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशंस अबव उस हिसाब से तो बहुत सिंपल है, हालांकि ये भी उतना भी नहीं है. GV divided by 2G और फिर अगर मतलब in that case I can actually substitute them, है ना. और जो hence the Gauss's formulae under this जब मैं ये changes करूं, hence the Gauss's formulae become readable and we can do that because हमें पता है अगर हम reparameterize ऐसे कर सकते हैं कि हमारी parametric curves orthogonal will be reduced to, ये बन जाएंगे under this condition R sub UU, ये हम याद भी रख सकते हैं, ln plus 1 by 2 E sub U divided by E into RU plus minus negative था minus EV divided by 2G into R sub V and RUV is equal to, of course यहाँ तो MN है, then I would have plus 1 by 2 E sub V by E into RU, then I have plus G sub U divided by twice G into R sub V, and similarly RVV is equal to N times N plus, नहीं यहाँ माइनस आएगा, 1 by 2 G sub U divided by E RU plus G sub V divided by 2G G sub V into R. So ये बन जाएगी Gauss's formula in case the parametric curves are orthogonal. Okay. हाँ, मैं यहाँ तुम्हें एक होम असाइनमेंट दूंगा. Okay, exam exercise है तुम्हारी. Now find the Christoffel symbols for the Monges form. Find the Christoffel symbols for the Monges form. Monges form होता है Z is equal to f of x square, है ना. अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारा u की जगह x है ना, एंड v की जगह y है, और जब तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो विद रिस्पेक्ट, और तुम्हें पता है E इज इक्वल टू मतलब वो बदल जाता है 1 प्लस पी स्क्वायर, F इज इक्वल टू पी क्यू, इसी तरह से G इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर, वेयर P इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स, Q इज इक्वल टू तो क्या है डेल एफ बाई डेल वाई. इसी तरह से LMN के लिए भी वहां फॉर्मूली है, लेकिन ये तुम करोगे योरसेल्फ. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये तो था Gauss's formula, एक हिस्सा हमने कर लिया. Then there is something called Gauss's characteristic equation. ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा है. So मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है. Gauss's characteristic equation ये हमने कर लिया, तो हमने वो कर दिया एक्चुअली, थ्योरम एग्रेगियम हो गया. मतलब we show that Gauss's characteristic is that t square is equal to 1 by 2 into twice FUV minus EVV minus GUU, देखो कितना लंबा चौड़ा है, plus M square E plus twice M mu F plus mu G, okay, minus ln E plus L nu plus lambda n into F plus lambda nu into G. So this is t square. Now look at this. हमें पता है जो Gaussian curvature है वो बराबर है it is t square by h square, है ना. So अगर मैं t square को ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें क्या क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव E F G, E है, F है, और क्या है Christoffel symbols, है ना, where L M N and lambda mu nu
are Christoffel symbols. Christoffel symbols. देखो इससे पहले जो हमने किया, ये जो LMN है ना, ये लिखे जा सकते हैं in terms of EFG and their partial derivatives. मेरी बात समझ में आ रही है? जो ना हमने अभी किया Gauss's equations. तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है ये जो टी स्क्वायर है, जो कि बराबर है ln माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई EG माइनस एफ स्क्वायर. अब देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक तो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं which can themselves be written in terms of EFG and their partial derivatives, और दूसरा है प्लस हमारे पास है EFG and their partial derivatives. तो इसका मतलब अगर मैंने ये प्रूव कर लिया, उसका मतलब टी स्क्वायर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ EFG and their partial derivatives. मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर तुम्हें मैं कहूंगा प्रूव थ्योरम है एग्रेगियम, एक तो तुम पहले वो प्रूव करोगे कि क्रिस्टोफल सिंबल्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ EFG एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव, वो डिराइव करोगे. फिर तुम ये प्रूव करोगे. वंस तुमने ये प्रूव कर दिया, तुमने दिखा दिया कि K कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ EFG एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय EG माइनस एफ स्क्वायर है. अगर तुमने टी स्क्वायर ये दिखा दिया, इसमें एक तो EFG and their partial derivatives हैं, और फिर Christoffel symbols हैं, और Christoffel symbols themselves can be written as first and second order fundamental magnitudes. So which means T square then can be written as in terms of here. Of course, it would be a very complicated formula. Imagine you have to actually write m mu and mu square whatever, and then you have to substitute. तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा complicated सा formula होगा ना, मतलब ये तो एक पेज पे आ जाएगा, इसीलिए इसको दो हिस्सों में करते हैं. But nevertheless it proves it. पता नहीं गाउस को क्यों लगता है ये, मतलब जो इसका ये फॉर्मूला है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और लेकिन गाउस को ये लगता था ये बड़ा थ्योरम है उसका, क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए थे. ओके, सो नाउ लेट्स प्रूव दिस दैट टी स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक दिस, और कंबाइंड इट विद द अर्लियर इक्वेशंस, अर्लियर थ्योरम. दैट मींस मतलब इन दोनों को कंबाइन करके बनेगा ये थ्योरम एग्रेगियम. ये प्लस जो प्लस प्रीवियस एग्रेगियम, और जिसको हम कह सकते हैं, अगर मुझे कहना हो, हम कहते हैं गाउसियन कर्वेचर इज इंट्रिंसिक. और ये भी इसकी दोनों को मिला के अगर हम ये स्टेटमेंट दे दे तो दैट वुड बी करेक्ट डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स गो फॉर द प्रूफ. मतलब इसमें कैलकुलेशंस ही हैं, प्रूफ कुछ नहीं करना बेसिकली. सो प्रूफ इसका ये होगा, गाउसेस फॉर्मूली हमें पता है क्या है. गाउसेस फॉर्मूली में हमें मिलेगा, एज वी नो, जो हमने अभी किया था, RUU इज इक्वल टू LN. चलो मैं लिखता हूँ फ्रॉम Gauss's formulae, we know that R sub UU is equal to L times N plus L times R sub U plus lambda times R sub V. Then I add RUV is equal to M times N plus small m times R sub U plus, of course, mu times R sub V, and RVV is equal to N times N plus small n times R sub U plus nu times R sub V. ओके, तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं पहली दो इक्वेशंस का, राइट, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड का लेते हैं पहले. फर्स्ट एंड थर्ड का अगर हम ले, इन दो का ले हम डॉट प्रोडक्ट, तो आई विल गेट RUU डॉट इन विद RVV बराबर होगा. तो इनको अगर हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, राइट हैंड साइड्स को देखें, पहले देखो इसका इसके साथ, मतलब पहले तो मुझे मिलेगा खाली ये पहले नंबर से. जब मैं इससे करूंगा इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट, तो आई विल ओनली गेट LN into N डॉट N.
क्यों? क्योंकि इसका जब आर यू के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, इसका जब इसके साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 आएगा, ठीक है ना। दूसरा फिर मैं इस नंबर से करूंगा दोनों, मतलब तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, आर यू डॉट एन तो 0 आएगा, तो इसमें मुझे मिलेगा प्लस एन आर यू डॉट आर वी। फिर इसका और इसके साथ तो मुझे मिलेगा प्लस एल आर एल न्यू, है ना, न्यू एल, चलो मैं लिखता हूँ न्यू एल आर यू डॉट आर। अभी मुझे तीसरे के साथ करना है इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट, आर वी डॉट एन तो 0 आएगा, तो मुझे मिलेगा लेमडा एन आर यू डॉट आर वी प्लस देन आई वुड हैव लेमडा न्यू आर वी डॉट आर वी। अब मैं यूज ये करूंगा कि आर यू डॉट आर वी एफ होता है, आर यू डॉट आर वी एफ होता है, और आर यू डॉट आर यू इज एक्चुअली ई एंड आर वी डॉट आर वी इज जी, और एन डॉट एन जो है वो 1 आएगा। सो ये मिल जाएगा मुझे बेसिकली एल एन प्लस सारा हिसाब करके एल एन ई प्लस एल न्यू प्लस लेमडा एन टाइम्स एफ प्लस लेमडा न्यू इंटू जी। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा अगर मैं लेता आर यू वी डॉट आर यू वी, अगर मैं इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, ये जो बीच वाली इक्वेशन है, तो इसी तरह से अगर मैं करूंगा तो आई वुड गेट, व्हाट डू आई गेट, आई वुड गेट एक्चुअली क्या है न्यू स्क्वायर, सो आई वुड एक्चुअली गेट व्हाट इज दिस, हमें क्या चाहिए था ऊपर, ओके, सो यू वुड हैव m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर तो आएगा ही, कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर टाइम्स e प्लस ट्वाइस m mu times f plus mu square g. I call this equation second. Okay, these two equations अब मेरे पास है, I've got RUV dot RVV और RUV dot RUV, ये दो equations। इसके बाद मैं वापस जाऊंगा जो मैंने वहां निकाले थे इससे पहले, जो मैंने निकाला था कि EV is equal to twice, what was that, RU dot RU को V के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट, कुछ तो मैंने लिखा था, अच्छा मैं देखता हूँ। ओके, दिस इज एक्चुअली ट्वाइस आर यू वी डॉट आर यू वी, एंड सिमिलरली एफ सब यू अगर मैं निकालूंगा तो दैट वुड बी ट्वाइस, ट्वाइस तो नहीं होगा, एफ यू दैट इज आर वी वी डॉट, तो ये होगा आर यू डॉट आर यू वी प्लस आर यू यू डॉट आर वी, हाँ यही होगा। इसी तरह से अगर मैं लूँ जी सब यू होगा ट्वाइस आर वी डॉट आर वी यू या यू वी, बात एक ही है, राइट। ये करने के बाद मैं इन तीनों का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, यानी उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। सो यू विल गेट ई वी वी, थोड़ा सा इसमें सब्र करना है, अगर तुम घर पे भी करोगे। सो इट वुड बी ट्वाइस, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है लेकिन काफी लंबा चौड़ा, प्लस ट्वाइस आर यू dot RUV, and then you again partially differentiate it with respect to V. Similarly, GUU बराबर होगा twice RUV dot RUV plus twice RV dotted with RUV with respect to U. Similarly, FUV, of course लंबा चौड़ा है, would be RUV dotted with RUV plus, ये थोड़ा ज्यादा ही होगा, आर क्योंकि इसमें दो टर्म्स थी, आर यू वी अगेन विद रिस्पेक्ट टू वी प्लस आर यू यू विद रिस्पेक्ट टू वी डॉटेड विद आर वी प्लस आर यू यू डॉटेड विद आर वी। ये तो लंबा चौड़ा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा यूज करूंगा इन तीनों को, यानी अगर मैं लूंगा ट्वाइस एफ यू वी
इन तीनों को मिला के माइनस EVV एंड प्लस नहीं माइनस GUU। अगर मैं इनमें से ये इवेलुएट करूंगा इट वुड बी मच सिंपलर, इट वुड बी जस्ट, क्योंकि इसमें अक्सर तुम देखोगे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इट वुड बी RUV डॉट RUV माइनस RUU डॉट RUV। हम यहाँ थोड़ा टीडियस है कैलकुलेशन थोड़ी सी, कि ये इसके बराबर होगा। अब हम पिछला वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये और ये, क्योंकि अगर मैं देखूंगा ना यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ यही है RUV डॉट RUV एंड माइनस RUU डॉट RUV। नहीं, यहाँ PV होना चाहिए, RUV UV, हाँ यहाँ RUU डॉट RUV, आई थिंक वही है, राइट। सो विच इम्प्लाइज, इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि RUV dotted with R sub UV minus RUU dotted with RBV, I hope, हाँ यही है जो हमने वहाँ इवेलुएट किया है। This is equal to 1/2 into twice FUV minus EVV minus GUV. Now you just take the left hand side और इसमें substitute करते हैं। Let's call this equation 3। चलो इसको नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके जो हमने लिखा इसको 3 लिखते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें मिलेगा, अगर मैं पिछले पेज पे जाऊं, ओ नो, पिछला पेज ये है। अगर मैं ये यूज करूं, राइट, कौन सा मैंने था, आई गॉट 1 and 5 and subtracting 2। देखो क्या मिलेगा मुझे, लेट मी सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे पेज से उधर से इधर से यहाँ जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा इसमें, एक तो ये है मेरा इक्वेशन थर्ड, अगर मैं थर्ड और ये पुरानी इक्वेशन को ऐड करूंगा, थर्ड एंड सेकंड को ऐड करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 को, पहली और 3 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो 2। अब ये मुश्किल है दूसरे पेज पे, तो लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि तुम ये देखो, एडिंग 1 and 3 and subtracting equation second। अगर हम वो करें तो हमारा काम हो जाएगा, we will get actually लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 0, क्योंकि जब मैं 1 और 3 को ऐड करूंगा फिर सब्ट्रैक्ट 2 करूंगा, तुम आराम से देख सकते हो 0 मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो 0 मिलेगा। 1 and 3 इसमें क्या है RUU, और यहाँ पे ऐड करो इसके साथ, तो एक खत्म हो गया, फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे ट्वाइस दूसरी, तो दूसरी टर्म खत्म हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड 0 मिलेगा। और राइट हैंड साइड जो मिलेगा वो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं बार बार उसको इधर उधर नहीं घुमा सकता। वो मिलेगा lne प्लस, यानी हमारा काम हो गया। लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन होगा ऑफ कोर्स, प्लस लेमडा न्यू g प्लस 1/2 into twice f sub uu minus e sub bb minus GUU, then I have minus, वो कितना है, कैपिटल M square plus M square E plus twice M mu F plus mu square, इतना, ये इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ln minus M square है इसको हम एक साइड पे ले जाएंगे एंड वी आर डन, या बाकी सारा दूसरे पे ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब इसको इधर ही रखा हमने, तो टी स्क्वायर जो है वो हमें मिलेगा जो इज इक्वल टू ln माइनस एम स्क्वायर, उसका मतलब बाकी सारा जो बचा कुचा है दूसरे साइड पे डाल दो। तो जब वो करेंगे हम तो